Okay, so hello, welcome everyone to today's webinar. So we have a very distinguished guest, Dr. Nazair Khwaja. Dr. Nazair Khwaja is one of the very renowned Pakistani planetary scientists. Uh, he he has been working in planetary science and astrobiology for more than 2 decades, and he is now based in Germany, Berlin. He has been associated with Freie University Berlin and Stuttgart University, and he has been also working in exploring the habitability and extraterrestrial oceans related to the outer planets of our solar system. And more importantly, he has been able to work on many science missions, especially Destiny by JAXA, NASA Europa Clipper mission, and NASA Cassini. So these have been missions. Being a scientist from the global south, it's he has been able to contribute in such missions, and he has been always interested to make sure that he is also contributing in outreach for science. And over to you if I have not made any error, Dr. Ozair, please. And thank you for joining and taking out time. And more importantly, Dr. Ozair has been one of the very few early members, supportive member and advisory members of Scientia magazine. That is one of the important things. Glad I just didn't forget. And he has been supporting us for since quite a while in every capacity, personal and professional, for Scientia. And thank you, Dr. Nader, for taking out time. And please. Thank you, Foz and Sadika. It's a great pleasure to come back onto Scientia platform. Actually, today, after a long time, I look back into your website, and I'm really surprised and pleasantly surprised. It's really wonderful, and congratulations onto that. तो तारुफ आपने मतलब करवा दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारी ऑडियंस कौन होगी, किस तरह की होगी, एंड कैसे मैं इसको लेकर चलूँगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कितना एक प्रिलिमिनरी लेवल पे होगा ये। तो जितनी भी ऑडियंस है, मैं देख पा रहा हूँ 13-14 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। तो अ काइंड ऑफ ब्लेंड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ डायरेक्शन से आते आते एक्चुअली एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और वो है राइटिंग एंड साइंटिफिक राइटिंग एक्चुअली। और उस साइंटिफिक राइटिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम कैसे मुख्तलिफ डायरेक्शन से लेकर चलते हैं। प्रोफेशनल पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पब्लिकेशंस के अंदर, ऑल्सो जब हम उसको साइंस फिक्शन में लेकर आते हैं, फिर बिल्कुल इसी तरह से फिर हम साइंस कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं। और साइंस कम्युनिकेशन के आपको पता है कि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। इनमें ना सिर्फ टेक्स्ट आ जाता है, बल्कि इनमें आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी करनी होती है, इसमें आपने फिल्म के लिए भी लिखना होता है, इसमें आपने बहुत सारे मीडियम्स को यूज करना होता है। तो you will see that as being a professional scientist, किसी ना किसी तरह से हम साइंटिफिक और साइंस कम्युनिकेशन या साइंस राइटिंग को कहीं ना कहीं से हम जाके आपस में क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं। तो sometime you will see that sometime I'm talking about entirely a different topic, but eventually it will be related towards your writing internship and your science communication towards finally the writing skills. So the topic जो था वो मैंने ये सोचा कि why not I should, it's a science is a huge topic, right? So why not I should merge towards my own specialty जो कि planetary science है और astrobiology है।
और प्लानिटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी का भी थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा इस कनेक्शन में, जो कि है जो हमारा टॉपिक है साइंस राइटिंग इंटर्नशिप। और लेट्स बिगिन। सो द टॉपिक आपने देखा कि क्यूरोसिटी टू कंट्रीब्यूशन को चूज किया और देखा कि इसको हम प्लानिटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी में कैसे फिट करते हैं, हमारी साइंस प्रैक्टिस क्या है, और फिर इसको हम कैसे लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बेसिकली जब कभी भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि हमने वी वांट टू राइट एक्चुअली, एंड वी वांट टू राइट साइंटिफिकली, whether it is science journalism or whether it is a scientific peer reviewed. So the question comes actually in front of every one of us, that who we are actually, कि हम हैं कौन, यानी हम किस कैपेसिटी के अंदर किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को देख रहे हैं। सो ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है और ये कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एंड एज बीइंग रिसर्च साइंटिस्ट we are looking at a specific information that we would like to pin down onto the paper in the form of text. So we should ask ourselves, चाहे हम साइंटिस्ट हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो कोई इंटर्नशिप कर रहा है और उसने इंटरव्यू करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डेफिनेटली ये जानने की कोशिश करेगा कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो हैं कौन, और सो दैट वो अपने आप को उस फ्रेम में ला सके कि क्या बात हो रही है, और टेक्स्ट के बारे में हाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द राइटिंग, and how we explain, interpret our scientific results. So research scientist is one of the communities that we would like to know. We would like to define ourselves, for example. Second जो हो सकती है कैटेगरी, जो इस साइंटिफिक इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहेगी, राइटिंग इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहेगी, या साइंस जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहेगी, वो है साइंस कम्युनिकेटर। सो साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको पब्लिक करेंगे, किस तरह से हम ब्रिज बन सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान में whenever we are talking about science और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और साइंटिफिक रिजल्ट्स। सो ये एक और कैटेगरी है जो कि साइंस राइटिंग के ऊपर बात करते हैं और रिजल्ट्स को लिखने की कोशिश करते हैं, but not in a professional scientific tone, rather it is more like public tone के अंदर ये काम करने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये भी डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि हम हैं कौन। थर्ड कैटेगरी जो हो सकती है, जब हम कभी भी साइंस के ऊपर बात करते हैं या साइंटिफिक रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं, then we always think that whoever is talking about science or scientific writing or science journalism or really professional scientist, so whether we are also falls in the category of social scientist, because social scientists, whenever they look at a certain scientific question, they have completely another view. Means they talk about the societal impact. Whenever we talk about science, they talk about the societal impact. इसीलिए उनकी जो राइटिंग होती है, उनके अंदर जो फ्रेजेस होती हैं, वो इन चीजों को कवर करती हैं जो कि प्रोफेशनल साइंटिस्ट प्रोबेबली नहीं कर सकते। फिर हिस्टोरियन है, whenever if you are historian, then you will write whatever the scientific piece of text in a completely different frame than theologian. For example, because we are talking about planetary science and astrobiology, I will talk about कि planetary science और astrobiology होती क्या है, लेकिन इसका बड़ा करीबी ताल्लुक है हम humans के साथ, कि जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या हम अकेले हैं इस पूरी यूनिवर्स में। तो तब थियोलॉजियन भी एंटर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में।
फिर फिलोसोफर हैं या म्यूजिशियंस हैं या परफॉर्मर्स हैं. सो डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि to whom you are going to address and who you are as well, and then you actually frame your writing skill about any scientific idea. So for that reason कि मैंने ये जो बात आपके सामने रखी है, इस बात को आप इस जो image है, you can understand what I wanted to say. कि for example you have a scientific fact. So elephant को आप समझें कि एक scientific fact है जो आप pin down करना चाहते हैं अपनी writing के अंदर. So the question is that from which angle you are looking at that scientific results. तो एक ये कहेगा, उसकी जब टांग को देखेगा तो ये कहेगा कि ये तो एक ट्री है. कोई एक देखेगा उसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो उसके टीथ को देखेगा तो वो कहेगा कि एक तो इट्स जस्ट लाइक अ स्पीयर, वेरी शार्प एज. कोई उसके कान को पकड़ेगा, then he will claim that there is a fan. So it means that if you have a certain narrow view of any scientific result, you will actually portray and pin down the result if you don't have holistic picture. So there actually the scientific writing becomes a little bit tricky. So that's why whenever you talk about scientific writing, whether you are a journalist or whether you are a science communicator, you need a holistic picture. And I am taking you through this journey that how the holistic picture actually impact on your writing skills. So that's why you need to share the perspective. That is no doubt. For example, you are working on a project report, and this project report is as a result of too many different theories, too many different perspectives. So you need to learn, you need to read out those perspectives so that you can communicate the facts in a correct way to your writing skills, to your scientific text. तो आप अगर पिछली स्लाइड्स को आप जहन में रखेंगे, मैंने सवाल जहां से शुरू किया था कि ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि हम हैं कौन और हम किन के साथ ये बात कर रहे हैं. तो then we can further move on to this question. So here in this picture, if you further move on, then I would stop you from at this location. Just keep that in mind, that where we were stopped here, the elephant as a big result, and you have a different views. And if you are narrowed down, then there is a chance that whatever you are writing and publishing, it can be a very limited information and can be a very limited and narrow angle and not the holistic and not a very accurate. तो हम इसकी तरफ दोबारा वापस आएंगे, लेकिन क्योंकि हम ये जितनी भी राइटिंग इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं और इस टॉपिक में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको एज ए केस स्टडी के तौर पर हम प्लैनेटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो इसलिए आपके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि बेसिक इंफॉर्मेशन प्लैनेटरी साइंस की है क्या, क्योंकि आप अब राइटिंग करने लगे हैं. फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखने लगे हैं पॉपुलर साइंस कैटेगरी में अबाउट प्लैनेटरी साइंस रिजल्ट्स. सो यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया इन जनरल दैट व्हाट इज प्लैनेटरी साइंस. So planetary science in general, in a very layman word, is actually focus on study of planets or planetary systems. तो हमारे अपने सोलर सिस्टम में आप देख लें कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, और उनके जो सिस्टम्स हैं इंक्लूडिंग मून्स. अगर आप सैटर्न, इफ यू टॉक अबाउट सैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा सैटर्न जो है उसके इर्द गिर्द रिंग्स हैं, उसमें मून्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं. इसी तरह प्लैनेटरी साइंस में हम ये भी बात करते हैं दैट हाउ प्लैनेटरी सिस्टम्स एक्चुअली इवॉल्व्ड और किस तरह से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से इंटरेक्ट करता है. तो ये एक जनरल ओवरव्यू आपको इस सब्जेक्ट का होना जरूरी है अगर आप
इसके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लिखना चाह रहे हैं अपने थीसिस के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि हम कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे एड्रेस करते हैं। तो एज बीइंग साइंस जर्नल, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो, और अगर आपने ये वाला प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू रखना है, तो देन यू कैन हैव अ सर्टेन क्वेश्चंस इन माइंड जो कि प्लानिटरी साइंटिस्ट जो हैं वो एड्रेस करते हैं। हाउ आवर सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड, हाउ आर द कंडीशंस ऑफ लाइफ जो हमारी हैं अर्थ पे वो कैसे इवॉल्व हो गई हैं। इसी तरीके से हाउ सोलर सिस्टम वर्क्स and how one planet can influence onto the other planet, how sun is influence, put lot of gravitational and many energetic radiations that can influence the atmosphere of other planets. तो ये इन्फ्लुएंसेस जो हैं इनकी आप स्टडी करते हो और किस तरह से एक प्लानिटरी सिस्टम इवॉल्व होता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, यू नीड अ जनरल ओवरव्यू of that subject, whether you are a science communicator or you plan to pursue as a science communicator or not. इसी तरह से जब हम एस्ट्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोबायोलॉजी एक सिंगल क्वेश्चन को एड्रेस करता है। It has many dimensions astrobiology के अंदर, but only a single question, whether we are alone in this universe or not, if there is life elsewhere, how we are on earth as we are, whether there is life as we don't know. For example, हम तो एक ही लाइफ को जानते हैं, DNA based, carbon based जो कि हम हैं। So the question is that if there is any other life. So this is also a general idea of astrobiology. When you are going to talk about anything, any topic, any article related to this science, then you must be aware of general information that what we are going to study. जिस तरह मैंने प्लानिटरी साइंस के बारे में बताया, उसी तरह से आप ये देखें कि एस्ट्रोबायोलॉजी में भी हम क्या, अब देखें आप में से कई लोग मुख्तलिफ फील्ड से होंगे, कुछ बिल्कुल फिजिक्स में से होंगे, कुछ फॉर एग्जांपल थियोलॉजियन होंगे, कुछ सोशल साइंटिस्ट होंगे। तो ये एक बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है जो कि एक्वायर करना जरूरी है जब कभी आप इस बारे में लिखना चाहें कि अच्छा लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, लाइफ का ओरिजिन क्या था, किस तरह से सर्टेन कंडीशंस हों तो तब लाइफ वहां पे एग्जिस्ट करती है, और अगर सर्टेन कंडीशंस ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। हम किस तरह से एक नॉन लिविंग से लिविंग जो है वो बने, किस तरह से सर्टेन प्लैनेट्स हैबिटेबल बन गए। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज भी मिल रही हैं, लाइक हैबिटेबल। So if you are not familiar with this very common and generic, then you are unable to write anything. So it means that you need a basic terminology of that field to pin down, to write it down into a nice text. तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत डीप इनका नॉलेज एक्वायर करें, बट इन जनरल लेवल पे you must be aware of this. So अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स मेरा केस स्टडी जो है वो यहाँ पे क्यूरोसिटी से कंट्रीब्यूशन तक है। क्यूरोसिटी मीन्स from very beginning you actually ask a question, you have something in mind, and the contribution क्या है कि आपने वो टेक्स्ट लिख लिया है। So keep in mind that you start with curiosity and then you contribute. Contribute mean in your case some text that you have written in any capacity, right? In between these, there are many other steps that you will see in the following. And right now, ये curiosity and contribution का जो case study है, वो मैंने astrobiology and planetary science को सामने रख के लिया। तो आप planetary science के बारे में बात करेंगे, then you will find that there is many space missions all across the solar system that many space agencies are working on.
different planets, different questions, but the questions actually encompass all those fundamental questions that I showed earlier. For example, these are the questions. Similarly, these are the questions that we have listed here. तो इससे क्या पता चला? अब आप देखें, if you remember the image of elephant, right? If you have a narrow scope and narrow view, then probably you cannot write a very good piece of text that should be, accurate enough and attractive enough. और फिर आपने प्लानिटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी को देखा, तो और फिर आपने वो एलिफेंट वाला जो इमेज मैंने आपको दिखाया था, उसमें अगर आप होलिस्टिक पिक्चर नहीं लेंगे तो आपको शायद पूरी तरह से रिजल्ट्स को आप कवर ना कर सकें. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट you need a multidisciplinary approach. So that means even if you are a biologist, you must be aware of some sort of engineering. You must be aware of some sort of astronomy, some sort of geology, some chemistry, some physics. So your planetary science and astrobiology, fortunately, fits very well into this multidisciplinary scenario. तो आप जब ये सारे चीजों के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप रखेंगे, आपको पढ़ने का शौक होगा, you must be a very good reader, then it is you will see that how you can be evolved as a very nice science communicator in terms of science journalist or even a professional scientist, at least in the field of planetary science and astrobiology. So multidisciplinary approach is very much needed whenever you want to write on any topic related to the science, particularly for planetary science and astrobiology. इसी को अगर if we further move on, तो यहाँ पर तो मैंने आपको subjects के बारे में बताया कि देखिए chemistry, geology, biology, physics, engineering, astronomy, they are actually merging together to talk about planetary science and astrobiology. It does not mean कि एस्ट्रोनॉमी इससे बाहर है. यहाँ पे चूंकि मैं सिर्फ इन दो को एड्रेस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को नॉमिनेट किया है एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस. बट नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी दैट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ पॉज अ लिटिल बिट, और अब आप अगर ये देखें तो किस तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी ये आपस में सुपर इम्पोज हो गए हैं, ये आपस में शेयर कर रहे हैं नॉलेज, और शेयर इस तरह से कर रहे हैं कि ओवरलैप करते हुए ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, राइट? इन द प्रीवियस स्लाइड आई जस्ट सेड दैट you need to understand, for having some excellent article, a multidisciplinary approach. You need to understand different subjects. And here you see that from multidisciplinary approach, it goes to the interdisciplinary as well. So what does it mean? It means that एक ही क्वेश्चन का आंसर केमिस्ट्री भी दे रही है, बायो भी दे रहा है, जियोलॉजी भी दे रही है और फिजिक्स भी दे रही है. So in an interdisciplinary way, for example, what is life? This is at the top, you have one question, and you will see that how different sciences are actually merging together to give a single to give an answer of this single question. So this actually make you aware that whenever you would like to move on to write something, at least in astrobiology and planetary science, you need to be open. You don't say that, oh, I am a mathematician, I don't have to do anything with biology. No, you must be aware of the fundamentals of biology to write down. So that means आप क्योंकि writing task के ऊपर हैं, you need to write it scientifically. That means you are connecting the dots of one mindset with another mindset, right? You are connecting different people actually.
और ऐसा क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये जो न्यू एज ऑफ साइंस है ना, ये है ही मल्टीडिसिप्लिनरी. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट इन एनी कैपेसिटी, यहाँ पर हम राइटिंग टास्क की बात कर रहे हैं और साइंटिफिक राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर इसी को ले लें तो यू, एज आई डेमोन्स्ट्रेटेड अर्लियर, you need a little bit knowledge of everything, and don't be afraid, don't be shy to go towards many disciplines. You can have a fundamental, now this is artificial intelligence era, and you can actually find very easily the information that you would like to have from one subject to another subject. So never shy to seek help from whatever the sources are, to make yourself as an interdisciplinary scientist or multidisciplinary scientist. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अप्रोच है, हमने जब क्यूरोसिटी से कंट्रीब्यूशन की तरफ जाना है, तो देन वी मस्ट बी अवेयर ऑफ, or we must have an attitude of multidisciplinary attitude or interdisciplinary attitude. Otherwise, I'm afraid that we will not move on to a better writer. तो ऐसा क्यों है, एक और एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि हमें मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रिक्वायर्ड है. उसकी वजह यह है कि कभी किसी जमाने में होता था कि साइंसदान और साइंस जो है वो कॉमन पीपल के दरमियान में कोई ब्रिज नहीं होता था. So scientists are just like aliens for a common people, right? लेकिन अब जो न्यू इरा है उसमें वो इतना क्लोज नेटवर्क हो चुका है कि एक्चुअली व्हाटएवर यू डू, यू नीड टू इन्फॉर्म to the public, to the society, that whatever you do, what kind of effects you have. So that means societal impact जो है वो बहुत ज्यादा connected है आपकी fundamental sciences के साथ, और connected in a way है कि public wants to be aware of this, whatever we do as a scientist. So that means there is a catch. So that means there is a tremendous opportunity in between the space between the public and the professional scientist, right? So some scientists actually move their career to fill this gap as a science communicator, as a science journalist. It's just like you do biology and you do informatics. But you know, in biology, you also need informatics. So what happens for the past at least 10 years? Bioinformatics emerged as a new science, where biologists or IT experts, they come together and you become a bioinformatician. So that's how your writing will be flourished if you have this perspective as well, in whatever the capacity you are, whether you are a professional scientist or science journalist or whatever. So societal impact is also much more important. अच्छा, तो अब मैं वापस जाता हूं जहां से हम शुरू हुए थे इसमें, कि हमने क्यूरोसिटी से कंट्रीब्यूशन की तरफ जाना है, राइट? तो आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे, फर्ज कर लें, आप उसको, मैंने उसको कलर कोडिंग किया है एक फैज के शेर के साथ कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेज है उसमें मैंने मंजिल को, मंजिल वो है जो एंड है आपका ना, तो उसको आप समझ लें कि कंट्रीब्यूशन, उसको आप समझ लें कि पीस ऑफ राइटिंग, द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग, द फाइनल कंट्रीब्यूशन. और वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई है, उसका स्टार्ट क्या था, वो जुस्तजू थी, वो क्यूरोसिटी थी. तो आपने जुस्तजू से अपनी मंजिल की तरफ जाना है, यानी जुस्तजू होगी तो कंट्रीब्यूशन होगी. तो अभी तक का जितना हमने ये सफर तय किया है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कहे हैं आपको कि यू हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, you must be aware of, you must ask a question that who you are and to whom you are going to address.
तो ये सारी कैपेसिटीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। तो अगर अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है कि स्टार्ट हमने किया क्यूरोसिटी से, एंड हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की तरफ, लेकिन दरमियान में देखें कितना गैप है, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर क्या हो रहा है। क्यूरोसिटी एक स्टेप लगता है, कंट्रीब्यूशन दूसरा स्टेप लगता है, बट व्हाट इज इन बिटवीन? तो यहाँ पे वो स्किल है और वो मेथडोलॉजी है जो आपने अडॉप्ट करनी है। ऑल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हम यही करते हैं, प्लैनेटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी में भी हम यही करते हैं, जो अब आपको मैं दिखाने लगा हूं। तो ये जो गैप है, जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं? अगर एक बच्चा है, वो फायर है, तो वो बच्चा फायर को देखकर क्यूरियस होगा, तो वो क्या करेगा? वो फायर को एक्सपीरियंस करना चाहेगा ना, यानी उसका नॉलेज एक्विजिशन करेगा, राइट? और इसके साथ साथ वो इमेजिन करेगा कि ये क्या चीज है, और फिर वो हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा, तो उसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि इट रियली बर्न, राइट? तो उसके बाद वो अपने उस एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करेगा, मींस लिखेगा, बताएगा लोगों को, रोएगा, चिल्लाएगा, राइट? तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो यू स्टार्ट फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड यू एंड विद द कंट्रीब्यूशन इन योर राइटिंग स्कीम एज वेल। तो अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो इसका मतलब है कि ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और यहीं पे वो कैच है जहां पे मैंने आपको एलिफेंट का इमेज दिखाया, दैट मेनी पीपल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड वी विल सी दैट अगर आप क्यूरियस हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम एस्ट्रोबायोलॉजी एंड प्लैनेटरी साइंस, इज देयर लाइफ एल्सवेयर, हाउ डिड अर्थ बिकम हैबिटेबल? अब देखिए यहाँ पे वर्ड भी यूज किया मैंने, हैबिटेबल का। ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी फील्ड में और प्लैनेटरी साइंस में, पोटेंशियली मे बी बायोलॉजी में भी एज वेल। तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज का जानना जरूरी है। तो ये, लेकिन बहरहाल आप क्यूरियस थे एक चीज के बारे में, एंड देन व्हाट यू डिड, यू एक्वायर्ड द नॉलेज, राइट? यू ऑब्जर्व थ्रू टेलीस्कोप, फॉर एग्जांपल, you did experiments, you sent space missions, and as being a science journalist or writer, you went through past literature and publications, right? And then you figure out that, okay, I was very curious about these questions, and now I would like to acquire some knowledge. Why? Because I want to contribute. And what is the contribution? I want to write, actually. Okay. So whatever you are, whoever you are, whatever your capacity is, if you don't have observation, you don't have experiments, you don't have missions, doesn't matter. You have books, you have literature, then you go there, right? And acquire the knowledge. Once you acquire the knowledge, what does it mean? Acquire the knowledge के बाद imagination क्या है? For example, you understand there is F is equals to ma. There is an equation, right? Newton's law. So, अगर किसी को भी आप बता देंगे कि F is equals to ma और वो उस टेक्स्ट को पढ़ लेगा, तो आप ये बताएं कि सबसे पहले वो होता क्या है उसको, जब वो ये पढ़ता है, ये फैक्ट पढ़ता है, तो क्या होता है? वो किसी भी फील्ड का हो, उसके जहन में एक इमेजिनेशन आती है, F is equals to ma का क्या मतलब होगा। जो उसने पढ़ा है वो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि उसको बाद में होगी। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द फैक्ट्स विद डिफरेंट न्यू वेज। और क्वेश्चंस भी आप करते हैं, व्हाट इफ, जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है उसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, एंड देन यू एक्चुअली इमेजिन, एंड देन ग्रेजुअली आप क्या करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, आप डाटा को देखते हैं, राइट? आपको जो न्यूज आती है उसके बारे में आप डाटा एक्वायर करते हैं कि भाई ये वाली न्यूज जो हम तक पहुंची है, ये कितने क्रेडिबल जर्नलिस्ट से आई है, ये कितने अच्छे मैगजीन से आई है। और फिर आपको अंदाजा होता है कि जो आइडिया है आपके पास वो सरवाइव कर रहा है या वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है उस चीज के बारे में जो आपने नॉलेज एक्वायर किया, उसको इमेजिन किया, एंड देन उसको अंडरस्टैंड किया। तो
इसका मतलब है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो रिमेंबर कि मैंने सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन किया कि हु आर वी, हु आर यू, राइट? Whether we are professional scientists, science communicator, theologians, artists. So until understanding, everyone is doing the same thing. मैं एज ए प्रोफेशनल साइंटिस्ट, आप साइंस कम्युनिकेटर, एक रिलीजियस पर्सन, थियोलॉजियन अपना एक कर रहा है, आर्टिस्ट अपना एक कर रहा है। अब हमने कंट्रीब्यूट करना है, और कंट्रीब्यूट मैंने आपको बोला कि आपका एक असाइनमेंट है कि आपने उसको राइट अप करना है। अब जब साइंटिस्ट इसको देखेगा तो वो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट फॉर्म में करेगा। साइंस कम्युनिकेटर विल हैव एन अदर वे ऑफ डूइंग दैट। थियोलॉजियन उसके अंदर से कुछ और चीज निकालेगा, और आर्टिस्ट उसको परफॉर्म करके बताएगा द वे आर्टिस्ट वांट टू डिस्प्ले। तो इसका मतलब ये है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम खुद हैं कौन और हम किन के लिए ये वाला काम करने जा रहे हैं। एंड देन वी नीड अ होलिस्टिक पिक्चर। आप ये देखें कि एक ही रास्ता है, एक ही क्वेश्चन था क्यूरोसिटी का, बट इट एंड्स अप डिफरेंटली because you have different people, and we need to understand that how scientists work, how communicators are working, how theologians really think about this question. तो इसका मतलब है कि मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड है। तो एक केस स्टडी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। आप यूं समझें कि यहां पर आपको एक पॉज आ गया है, राइट? और मैंने बार बार एक जिक्र किया कि जब साइंटिस्ट लिखेगा तो उसकी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी उस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। Science communicator will adopt its own style, its own terminologies, theologians, artists. So it means whenever you want to write something, terminologies really matter. और terminologies जो हैं, जो आप use करते हैं, they can, really take you away from the actual fact. For example, हमने ये एक पेपर लिखा था 2023 में बायोसिग्नेचर्स के बारे में। अब बायोसिग्नेचर एक टर्म है जो एस्ट्रोबायोलॉजी में और प्लैनेटरी साइंस में फंडामेंटली बहुत ज्यादा यूज होती है, एंड दिस इज फॉर सर्च फॉर लाइफ। सो जो तो आप में केमिस्ट्री और बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो क्विकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे और रिलेट करेंगे कि अच्छा, बायोसिग्नेचर मींस signature of bio, right? And bio, when we explain, bio means life and signature means signs, right? So biosignature mean certain signs of life, okay? लेकिन ये वर्ड जो हैं, जब इनको मजीद आप डीप जाके देखती हो तो ये एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनके सिनोनिम्स भी बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have biomarkers, you have bioindices, you have biotracers. तो जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो समटाइम हम एक मिस्टेक कर देते हैं। हम एक्चुअली कॉस्मेटिक की तरफ जाते जाते अपने टेक्स्ट को कॉस्मेटिकली ब्यूटीफुल बनाते बनाते हम फैक्ट से दूर चले जाते हैं। अगर एक साइंटिफिक रिजल्ट्स है वो बायोसिग्नेचर की डेफिनेशन के मुताबिक वो एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन हमें अपनी राइटिंग में बायोट्रेसर्स बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जस्ट फॉर नथिंग, तो हम बायोट्रेसर्स को यूज कर लेते हैं। और ऐसा हुआ है और ऐसा होता है इवन कि प्रोफेशनल साइंस की फील्ड में भी। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमें प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज को यूज करना है। अब आप देखें, ये मैंने आपके सामने प्लॉट रखा है, तो आपके लिए ये भी एक बड़ी नाइस एक्सरसाइज है कि whenever you are going to write as a professional scientist, what should you do? For example, this is your result, and this result is a plot. Don't go anywhere else. Just focus on whatever the information you are looking at with your eyes. क्या देख रहे हैं आप कि x एक्सिस है, उसके ऊपर years लिखे हुए हैं, और y एक्सिस है, उसके ऊपर काउंट्स हैं, 200, 400, 600, 800, 1000।
और ऊपर देखिए लेजेंड में आपको नजर आ रहा है कि साइंस डायरेक्ट एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, वो ब्लू कलर से है उसको बताया हुआ, और गूगल स्कॉलर जो हमारा है वो रेड से है। और आप देखें कि 1970 से रेड और ब्लू लाइंस दोनों कंबाइन चल रही हैं और ऑलमोस्ट जीरो काउंट्स हैं। जीरो काउंट्स किसके? यूज ऑफ बायोसिग्नेचर जो टर्म है लिटरेचर में। और जैसे ही 1990 हम 2000 के करीब पहुंचते हैं, 2000 years में, मे बी मोस्ट ऑफ यू वर नॉट बोर्न एट दैट टाइम, आई वाज। सो वहां से आप ये देखें कि जो गूगल स्कॉलर में हमने जब देखा तो गूगल स्कॉलर में बायोसिग्नेचर टर्म जो है वो यूज होना शुरू हो गई, उसके काउंट्स बढ़ रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप देखें, इस जगह पे पहुंचेंगे तो 400 काउंट्स आ गए 210 के बाद, और इस जगह पे पहुंचे तो 1400 टाइम्स बायोसिग्नेचर्स के काउंट्स हैं लिटरेचर में। जबकि जो साइंस डायरेक्ट है, जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, जो कि साइंटिस्ट अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं, उनमें भी देखें ग्रोथ आ रही है। लेकिन उससे पहले ये वर्ड यूज नहीं हो रहा था उस लेवल पे। सो यू सी दैट हाउ टर्मिनोलॉजीज इवॉल्व्ड एंड यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दोस। अच्छा, इसी को हम, ये मैंने अगेन उसी पब्लिकेशन में मैंने एक ग्राफ उठाया, ऑल दो कि यू विल सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। Don't go anywhere else, just follow what I'm saying and look at this laser here. So ये है क्या, ये पिक्चर क्या बता रही है? ये बता रही है कि वॉल्केनिक करप्शन है यहाँ पे, राइट? और क्या बता रही है? और ये बता रही है कि अच्छा ये कुछ माइक्रोब्स हैं, ठीक है। वॉल्केनिक करप्शन से आपको मुख्तलिफ तरह की गैसेस मिल रही हैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि बेसिकली सन जो है वो भी अपनी रेज डाल रहा है उन गैसेस के ऊपर, ठीक है। और ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है इस जगह के ऊपर, वो इन गैसेस को और इन इन कंपाउंड्स को जो रिलीज हो रहे हैं स्पेस के अंदर, वो उनको ऑब्जर्व करता है और उनको डाटा की शक्ल में हमें नीचे भेजता है, राइट। तो देखें बात कहां से शुरू हुई, राइट, और बात इस शक्ल में खत्म हुई आके हमें पता चली। सो द क्वेश्चन इज whether you will say biosignature this like this, or you will say that this result, whenever you will talk about in your writing, whenever you talk about this result, you will say, oh yeah, this is biosignature. Or whenever you will observe this gas by some spacecraft, you will say, this is biosignature. So the biosignature को आप किस चीज को आप बायोसिग्नेचर का नाम देंगे? तो ये भी साइंटिफिक राइटिंग में हमारी फील्ड में ये एक ओपन क्वेश्चन था जिसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। तो आप ये देखें इस प्लॉट के अंदर कि बायोसिग्नेचर्स जो है, अभी मैं आपको देखें, आपको लेके कहां जा रहा हूं कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो टर्मिनोलॉजी है, हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to create the context of whatever you are going to write. तो the types of biosignatures के एग्जाम्पल लेकर, वो सब्सटेंस भी हो सकता है। अब देखें जब सब्सटेंस होगा, और अगर आप फर्ज कर लें केमिस्ट्री नहीं जानते, राइट, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आइसोटोप्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, बायोपॉलीमर क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो स्टार्ट जहां से हम शुरू हुए थे कि आपको कुछ ना कुछ साइंसेस का पता होना चाहिए multidisciplinary approach के साथ. If you are talking about patterns, then you need to know what are the chemical networks. And at the same time, objects. If you are a geologist, you would know what are the fossils, what are the minerals, and all those things. तो ये देखें कि बायोसिग्नेचर्स मुख्तलिफ हवालों से लोग उनको मुख्तलिफ तरह से नाम दे सकते हैं। Sometimes people say physical pattern is actually biosignature. What does it mean? अगर आप एक आइस ले लें और उस आइस के ऊपर आप कोई कलर फेंकें, right? Or let's do it a very simple example. You
you have a clear water and clear glass, and you put a drop of ink, and then ink actually float, right? और वो एक ब्राउनियन मूवमेंट जो केमिस्ट्री जानते हैं उन्हें पता है कि वो उसके जरिए से वो उसकी कन्वेक्शन हो जाती है और वो चीज एक पैटर्न बनता है आपके ग्लास के अंदर। तो बाज लोग कहते हैं कि ये भी बायोसिग्नेचर हो सकता है अगर ये किसी लाइफ रिलेटेड फिनोमेना की वजह से हुआ है। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन। एंड नाउ अगेन for the biosignature, maybe it is not very clear on your smaller screens, but what I wanted to show you here कि आप ये देखें वर्टिकल कॉलम के ऊपर आए ना अगर आप, तो सबसे ऊपर ए बायोसिग्नेचर एक वर्ड है, फिर एंटी बायोसिग्नेचर, फिर बायोजेनिक, फिर बायो इंडिकेटर, बायो इंडिसेस, बायोसिग्नेचर, बायोमार्कर। और ये साइज जो है ना, जो सर्कल के साइजेस हैं, ये the bigger the size of the circle, that means the more is the usage of this word in that particular field which is at the top. So for example, you have 100% in red. ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो 100% आपको नजर आ रहा है जो रेड में है। तो रेड में जो भी है वो हमें ये बता रहे हैं कि 100% ए बायोसिग्नेचर इस्तेमाल हो रहा है एस्ट्रोनॉमी एंड प्लैनेटरी साइंस में। और देखें सम टाइम बायोसिग्नेचर जो है प्लैनेटरी साइंस में यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको ये, अगर आपको नजर आ रहा है मेरा ये लेजर, ये लाइट ग्रीन सर्कल के अराउंड, और अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये बायोमेडिकल साइंसेज है। तो देखिए सेम बायोसिग्नेचर वर्ड इज इन द बायोमेडिकल साइंस एंड ऑल्सो इन प्लैनेटरी साइंस। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप अपनी एक रिपोर्ट लिखेंगे, राइट, कोई फैक्ट एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आप बायोसिग्नेचर लिखेंगे और वो अगर कोई एक डॉक्टर पढ़ रहा है तो वो बायोमेडिकल साइंसेस के एतबार से सोचेगा ओके वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बायोसिग्नेचर। लेकिन अगर वो रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा तो मैं बिल्कुल इसको किसी और सेंस में लेने की कोशिश करूंगा। तो देन यू सी दैट हाउ चैलेंजिंग इट इज टू राइट समथिंग about the public. अगली एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहता हूं इसी में साइंस राइटिंग के अंदर कि एक मून है हमारा, अगेन प्लैनेटरी साइंस से एग्जांपल मैं दे रहा हूं। दिस इज अबाउट द सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न, and it has a moon, it's called Enceladus. Basically my major research is on this moon. And interesting fact of this moon is that this moon is ejecting its ocean material. It has an ocean, and this ocean material is ejecting continuously from its south pole. And there was a space mission by NASA, by ESA, by Americans, and by Europeans. Its name was Cassini space mission, and there was 11-12 instruments on board जो कि इस स्पेसक्राफ्ट पे थे, और वो ये जो मटेरियल है इसको सैंपल करते थे और हमें डाटा भेजते थे। अच्छा, ये तो एक स्टोरी हो गई जस्ट आपको बताने के लिए कि अच्छा जी एनसेलाडस है, इसके साउथ पोल से ये मटेरियल निकल रहा है, इसकी सरफेस में क्रैक्स हैं और उन क्रैक से ये मटेरियल निकल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे बताने का मकसद तो साइंस राइटिंग के लिए है ना, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये एक और इमेज है उसी मून का, and it is artistic image, but more or less the activity is the same. You can see here that spacecraft is really taking shower under this, material. अच्छा, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप इसको क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे ये फाउंटेन्स हैं, आप ये कहेंगे ये फवारे चल रहे हैं वहां पे उसके साउथ पोल से। लेकिन साइंटिफिकली यू विल फाइंड आउट ये जो कुछ भी इधर से निकल रहा है, लोग उसको जेट्स कहते हैं, कुछ लोग उनको गाइजर्स बोलते हैं, कुछ साइंस उसको प्लूम कहता है कि ये प्लूम है। अब ये तीनों वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। इवन पीयर रिव्यूड जर्नल्स मीन जहां पे हम साइंटिफिक रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी के बाद पब्लिश होते हैं।
तो हम ये तीनों वर्ड्स इस फिनोमेना के लिए भी यूज कर रहे हैं एनसेलाडुस पे। लेकिन ये देखें अगर आप कि ये तीनों का मतलब क्या है, और आपके लिए एज ए साइंस जर्नलिस्ट ये जानना बड़ा जरूरी है। आई स्टिल रिमेम्बर one event many years ago. Sadika was writing a report, and also one of our friends, Suhail Sahab from Karachi. And then there was a lot of debate in between me and these wonderful guys, Sadika and another occasion with Suhail Sahab, that using the terminologies. और आप ये देखें कि जेट्स क्या है, यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दी कि जेट वो है कि आप एक पाइप है और एक बड़ा कॉलीमेटेड वो लीकेज हो रही है और वो कॉलीमेटेड आपका वो पानी जो है वहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड जेट। गाइजर्स क्या हैं? एक इरप्टिव फीचर है, जैसे येलो स्टोन्स में मुख्तलिफ जगहों पर हॉट प्लूम गाइजर्स निकलते हैं जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा होता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है, फिर वो इरप्ट होता है, फिर नीचे बैठ जाता है। और जबकि प्लूम जो है वो है कॉन्टिन्यूअस एमिशन। आप ये समझ लें कि जब हम प्लूम की बात करेंगे साइंटिफिक राइटिंग में, तो एक्चुअली वी आर इंक्लूडिंग गाइजर्स एंड जेट्स देयर। ओके, तो जब हम एनसेलाडुस के बारे में बात करेंगे तो प्लूम is a kind of a big body that includes geysers and jets in a very simple layman terms. And even you can see that there is a small jets. अगर आप ये देखें जहां पे मेरा इस वक्त माउस है तो जेट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एज ए होलिस्टिक एक फिनोमेना के तौर पर देखेंगे तो देन यू हैव टू यूज प्लूम एक्चुअली। तो इसलिए आप ये देखेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो साइंटिफिक फैक्ट को किस तरह से ट्विस्ट करती हैं और जिसकी वजह से फैक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ओके, सो वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशंस राइट नाउ। तो आपने ये भी फिर देखा कि टर्मिनोलॉजीज कैसे इफेक्ट करती हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप थीसिस लिखना चाह रहे हैं, देखिए मैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्यूरोसिटी से कंट्रीब्यूशन, एज आई सेड अर्लियर, मींस कंट्रीब्यूशन मींस दैट द एंड गोल दैट यू वुड लाइक टू राइट समथिंग, और उसमें मुख्तलिफ चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब जो मैं चीज डिस्कस करने लगा हूं वो ये करने लगा हूं कि अगर अब आपने वाकई एक साइंटिफिक राइटिंग करनी है, बैठना है, थीसिस लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, तो आमतौर पर उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसमें यू हैव इंट्रोडक्शन, यू हैव मेथोडोलॉजी, यू हैव एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव डिस्कशन, यू हैव रिजल्ट्स। तो ये सारी रिपोर्ट आप लिखते हो और ये फिर कहाँ जाती है? अगर आप साइंस जर्नलिस्ट हो तो एडिटोरियल रिव्यूड की तरफ चला जाएगा, और अगर आप पीयर रिव्यूड में भेज रहे हो तो वो वहां पर चला जाएगा साइंटिफिक जर्नल्स में चेक होने के लिए। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू लर्न फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट राइटिंग? अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप पहले क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन है मेरा। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक हो रहा हूं कि आप क्या लिखोगे। क्या पहले आप डिस्कशन लिखोगे, पहले आप रिजल्ट लिखोगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे? क्या प्रायोरिटी है, क्या कन्वेंशन है नॉर्मली, और कैसे आप अपने आप को एक बेहतर राइटिंग स्किल की तरफ लेकर जा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट एंड वांट टू राइट अ थीसिस, तो पॉज देने के बाद मुझे ऐसे लगता है, बेस्ड ऑन many years of work and as well as talking with many other researchers, कि मेथड एंड रिजल्ट्स ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिनको एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप करो तो स्टार्ट में ही आपको लिखें। आप इंट्रोडक्शन ना लिखने बैठ जाएं, क्योंकि इंट्रोडक्शन, इट साउंड्स लाइक कि आपको इंट्रोडक्शन पहले लिखना चाहिए किसी चीज का, लेकिन साइंटिफिक राइटिंग के अंदर, स्पेशली पीयर रिव्यूड में, यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू नेल डाउन फर्स्ट योर मेथड्स एंड रिजल्ट्स। Maybe methods first and results later, or maybe results and methods all together. So this is a very healthy practice. Whenever you are a student, whenever you do your PhD or so,
these are the two things that you should write first. And then based on results, you can move on to a discussion. At the end, you can write a literature, based on literature, you can write introduction. And you see that the title and the abstract comes at the end, really at the end. So this is how, in general, there are certain things that someone can give a priority to some other things, but in general, you can follow this path. Now, further we are moving at the end, और यहाँ पे ये बात करने के बाद अब आपको मैं कुछ साइंटिफिक जो राइटिंग है उसका कुछ सैंपल दिखाने लगा हूँ कि आप देखें कि एक ही बात को जब एक साइंटिस्ट लिखता है, यू रिमेम्बर कि जब हमने सफर किया था क्यूरोसिटी से नॉलेज एक्विजिशन और उसके बाद हम आगे बढ़े, तो हमने क्या किया, हमने एट द एंड कंट्रीब्यूशन तक गए ना। तो कंट्रीब्यूशन क्या थी, कंट्रीब्यूशन ये थी कि आपने टेक्स्ट को लिखना है। अब आप ये देखें कि वो कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंटिस्ट की तरफ से भी आती है, वो जूनियर साइंटिस्ट की तरफ से भी आती है, वो साइंटिफिक जर्नलिस्ट की तरफ से आती है, वो थियोलॉजियंस की तरफ से आ सकती है। एक ही फैक्ट, इज देयर लाइफ इन द यूनिवर्स? इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, राइट? नाउ ऑन दिस स्लाइड आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये क्या है, ये उसी स्पेस मिशन के बारे में है जो एनसेलाडस की तरफ से था। मैंने जो आपको बताया, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, just think that what kind of word we are using. Molecular hydrogen detected in the plume, look at the word plume is there, is consistent with ongoing serpentinization reactions. You are no more scientists, you don't know about chemistry, but you see that technical word comes here, and then you see hydrothermal system comes here, and you then see chemolithotrophic metabolism, pure biology term is coming over here, where in planetary science. So if you are a hardcore biologist, you are doing planetary science here. So that's how you can really match an interdisciplinary approach. तो ये एक समझे एक सैंपल है जो कि पब्लिश हुआ है peer reviewed में. Okay, then अब देखें कि एक और बंदे ने इसको लिखा, तो वो क्या लिख रहा है? सेम फैक्ट है, the facts is the same, but there is a twist. He write or she write or they write, Cassini found molecular hydrogen in Enceladus plume, a chemical signature that suggests hydrothermal activity on the ocean floor. On Earth, similar environments can provide energy for microbial life, though no life has been detected. आप में से अपने तौर पर कोई बंदा हाथ रेस करे, हम बात तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं जस्ट एट द एंड हूं, लेकिन आप देखें एक बहुत बड़ी चीज पहले टेक्स्ट में नहीं कही गई थी, वो दूसरे टेक्स्ट में कही गई है, और वो क्या है? लाइफ, राइट? So there was no word at all about life in the first text. Both texts are for the same result, but you see the perception is now going to change. Now next. Okay, again same fact. अब देखिए क्या कह रहे हैं? Scientists discovered hydrogen gas erupting from Enceladus, pointing to possible hydrothermal vents beneath its icy shell. Icy shell का word जो है वो पहले एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, ऊपर कोई बात नहीं हुई उस icy shell की. हाँ, हाइड्रोथर्मल की बात हुई है, बट icy shell की कोई बात नहीं हुई. और फिर इसने नो लाइफ और लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ को इस तरह से बनाया, काइंड ऑफ एनर्जी दैट लाइफ नीड्स. और इसके बाद अब फाइनली अगर आप देखें एक और टेक्स्ट जो कि इसी फैक्ट को लेके चल रहा है, वो क्या कह रहा है? NASA found the key ingredients for life shooting out of Enceladus ocean. The discovery strongly suggests that alien microbes may already exist there. And you see it now, that how you evolve the same fact and you tone it differently. And the question is that which one is more authentic? Which science journalist is more authentic but still public, right?
So publicly language is something different, but the question is that whether the fact is the same or fact is almost 180-degree changed. So this is the task of modern science journalists, that they should take care of this. And you could be among some of them who will decide their future career in this direction. So finally, you need a science communication. You are either scientists, and then you want to go to the public. But you see who is in between? In between is Scientia, right? And this is the platform, and Scientia is doing a great job for communicating science results to the public. And this is a small token from my side to this great organization of Sadika, Fawz, and many others. So I think I have completed my talk and my discussions that I wanted to bring in. I don't know how much I have conveyed the message, but I hope that you got something at least. That's it. Well, well, first of all, for initial feedback, it was absolutely. I have no words. Because I have been moderating, like this is my 7th session for this series, and from interdisciplinary aspect, I mean, how you have highlighted how terms are being used differently. From a person coming from physics, mostly using jets, and astrobiological person coming from could be using a different one. And in the end, I mean, how everything summarizes, especially how when we are writing for public and how we are using it. I mean, as most of people don't know, but Dr. Nuzair has always been also communicating science, as well as is one of, like, most scientists, because most scientists which there may be very successful scientists, but most scientists are not in science communication usually. But Dr. Nuzair has been communicating it, and it was I will share some of those stuff with you after the session. And because we can have multiple ways of communicating science, and how is it important. And so now, most importantly, thank you for the whole conversation, and now we can have some questions. And I'm hopeful some of our participants, you can ask question, you can raise your hand explicitly, and you can ask question to Dr. Nuzair, and also you can put in the chat box. Okay, one more thing, Dr. Nuzair, could you please also share the slides later on with you? I would like to share with the participants as well. Yes, and okay, I think we can still take questions. I just had this one question I was holding on for quite a while. We use, especially for planetary sciences, when we use plumes, geysers, and jets. So my question is, could you highlight for all three of them the origin aspect? I mean, from which sciences all three of them originated initially? actually, it's gradually developed by the time when Cassini spacecraft revealed certain results. When I showed you one of the slides that Cassini spacecraft went to Saturn system, and then we find out the results. And sometime we thought, okay, it's actually collimated jet that is coming. So it's really like a beam of light, as we know. So it's a beam of water line that is coming very fast. And this is how we conceived the idea. But then the second was that probably the cracks from where this material is coming, it is closing and opening, closing and opening. And this is how we bring the idea of geysers. और इसी तरह से फिर हमें ये पता चला कि continuous emission भी है. It's like, if I interpret this like
you have the experience of you holding the pipe in hand and you are planting, you are watering, right, to your plants. तो आप बाजू का थम्स रखते हैं अपने उस पाइप पे जहां से पानी निकल रहा है, तो आपने देखा होगा कि आपका वाटर जो है वो एक कर्टन की तरह जाता है, लाइक अ लेयर, राइट। तो वो जो लेयर है, जो कर्टन है, वो कर्टन लाइक चीज को हम प्लूम फिर कहते हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात जेट भी आ जाता है, उसमें बाज़ औक़ात एक जगह से फ्लो शुरू होता है फिर रुक जाता है, बट इट स्टेज लाइक अ कर्टन, लाइक यू हैव अ कर्टन ऑन द वॉल। तो इस तरह बाय द टाइम व्हेनेवर देयर आर न्यू रिजल्ट्स, द न्यू geophysical morphology of this material is proposed in the publications, and most recent is preferable that we should use plume. And इसके साथ साथ ये भी मैं कह दूं कि जो साइंटिफिक राइटिंग है उसके लिए ये बहुत जरूरी है, स्पेशली साइंस जर्नलिस्ट के लिए, कि वो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ कनेक्ट रहे। Yeah, because just one thing, because when I was coming from physics background, I always saw them as jets. But also last time I was having with your discussion, and I was also, when I started reading more paper related to brand, I was also like, plumes are being used, and uh, it's really and in the end you are so right कि हमें context पूरा उसका पता हो, and for biosignature as well, क्योंकि we physics में हम उसे pattern समझते हैं, and it gets too broad. One more question. After 20, जो आपने ग्राफ दिखाया था 2020 के बाद, we have another question, but I just have one question. After 2020, जो बायोसिग्नेचर की टर्म के अंदर इतना ज्यादा अराइज हुआ, जो ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है, तो माय क्वेश्चन इज, वाज इट एनी मिशन, पर्टिकुलर मिशन दैट लेड टू यूजिंग? आई थिंक वो जो राइज है बायोसिग्नेचर्स का, उसकी रीजन ही ये है कि जो साइंस फिक्शन थी ना हमारी, कि एलियन के हवाले से, एलियन लाइफ के हवाले से, स्पेस मिशन के हवाले से, वो साइंस फिक्शन एक्चुअल साइंस की तरफ ट्रांसफर हो गई ना, कि अब हम वाकई ये चाह रहे हैं, हम अपने मिशंस भेज रहे हैं लाइफ को ढूंढने के लिए, राइट। सो फॉर दैट रीजन द फील्ड ऑफ रिसर्च around the space exploration is very much confined now to find out life, or at least the habitable environments where life can thrive or life can start or sustain. So for that reasons, this biosignature terms, not only from the space mission perspective, but also for the preparation of those space missions to need to establish in the labs. We used to do a lot of biological reactions and chemical reactions, and there the term coined biosignatures a lot. So for that reason, after 2020 or 2010 or 2000 after, this is excelling right now. Okay. Okay, so there is a question, because I think it's an absolutely advantage. Sufyan, you are asking a very good question with the right person. Dr. Nazair, could you also please, because planetary science is a very niche field. I mean, it's very difficult to find people who are able to advise about it. So please, the question is, for students in Pakistan, I mean, what skills should be prioritized if people are interested in pursuing planetary sciences? Could you please? Look, two things. This is unfortunate. I must say that planetary science and astrobiology are the questions which raise questions. And those questions are related to humanity, society. No other science other than astronomy, planetary science, and astrobiology really critically raise questions that are very much connected to the population, to the society and belief system, political system. और पाकिस्तान में unfortunately that is lacking. So सवाल करने की तो इजाजत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये साइंस जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है पाकिस्तान में। अगर मैं प्लानिटरी साइंटिस्ट हूं, मैं जब पाकिस्तान में आऊंगा तो बाय ट्रेनिंग, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है कि मैं क्वेश्चन उठाऊं। और क्या होगा कि जब मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा हूं और वो कनेक्टेड है पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोसाइटल इम्पैक्ट के साथ, तो मैं तो क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता,
राइट. सो इट मीन्स कि क्वेश्चन उठाने की जो इजाजत है ना वो बहुत जरूरी है. तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर ये है भी तो हमें फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, कुछ ना कुछ वे आउट निकालना है. तो उसमें जो वे आउट है ना, मैं हमेशा से आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद सादिका एंड अदर पीपल, यू फॉज, कि बेसिकली डायरेक्टली ट्राई करें कोलैबोरेशंस करने के लिए, कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो शाय ना हो, वो हेजिटेट ना करे बाहर के साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, और एक ही बात करें कि आई वांट टू कनेक्ट फॉर अ प्रोजेक्ट, आई वांट टू राइट अ पेपर ऑन सर्टेन आइडियाज एंड राइट पेपर. क्योंकि ये जो है ना, यूं कह लें कि लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में, प्लानिटरी साइंस की फील्ड में, वेदर यू डू फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर. तो जो सुफियान ने क्वेश्चन किया है कि वो क्या स्किल सेट एक्वायर करे, पहले तो वो क्रिटिकल थिंकिंग लाए, और पाकिस्तान के हालात देखते हुए उतना ही क्रिटिक हो जितना उसको जिंदा रहने की इजाजत दी जाए. तो उसके बाद क्रिटिकली वो क्या करें कि बायोलॉजिस्ट हैं तो फिर भी वो प्लानिटरी साइंटिस्ट हैं, एज आई डिमॉन्स्ट्रेटेड राइट नाउ. मैथमेटिशियन हैं तो फिर भी हैं, स्पेस मिशन से रिलेटेड हैं फिर भी हैं. तो आई डोंट सी कि बीइंग एज ए प्लानिटरी साइंटिस्ट, अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आई डिड फिजिक्स एंड मैथ्स बैचलर, देन आई डिड स्पेस साइंसेस, देन आई डिड एस्ट्रोनॉमी, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग केमिस्ट्री. तो इसका मतलब ये, और ये कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, प्लानिटरी साइंस के अंदर कर रहा हूँ और एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर कर रहा हूँ. तो यू डोंट नीड टू प्रायोरिटाइज एनीथिंग until unless you are very serious towards this science. Even के theologians जो हैं और social scientists भी अब इसका part बन रहे हैं. तो in general you should have a good aptitude towards any natural sciences in general. And then you just Google it and you will find, if you are a chemist, you have the foot into the planetary science. So no problem at all. Absolutely. And well, we are quite past the time, but this is a kind of session. I mean, usually we don't get much chance to. And absolutely, thank you, Dr. Nazar, for taking out time. And I would love to reconnect again. And especially, it was the presentation and all the whole story. It connects to so much for us whenever we are trying to write the bridge between, and don't get the chance to directly speak from a person, hear from a person who has just much experience with science and all background, so we can directly connect. And as well as your answer to Sufyan addresses much the connectivity, how can we build upon, because okay, it's or we can always be a science writer, but also, I mean, most people who are actually interested in science to become a researcher are mostly interested in science writing, and obviously, as you mentioned, that we need to have some of it background about the science to understand the context. And thank you for taking out time. We can do this over again very next time, and I would Sancha would reconnect with you. Yeah, thank you, first Dr. of all, thank you very much to you and Sadika and all participants here, though not too many questions. And this is kind of I would like to hear about the feedback if the yes, did, and feel free to connect with me, and we'll yes. do, once again whenever it is possible, and I'm not traveling anywhere, so take care. I have shared your LinkedIn with them because the work you are doing, it's really impactful, so they can connect and learn. And more importantly, we always get inspired. And yes, you have the first session here. So far, I enjoyed the session the most, as I told you earlier. I mean, because sometimes we are digesting a lot of information. So, but here you have the feedback, and I can say that because I am doing this like for quite a while, it was absolutely useful.
All right, good to hear. And we'll make this example at least here as well because of doing a lot of outreach activities. So it's good. Yeah, It's a good absolutely. feedback. Yeah. Thank you, Dr. Zach. Take care. So Allah Hafiz. Khуда Hafiz. Allah.